तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। तो एज यू नो, आई हैव वन मोर टॉपिक फॉर यू ऑल एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज पार्ट 4 for class 10 and somehow little bit basics ideas are given related to class 12th even. Clear students? So today I will discuss about the pattern. Today I will discuss about the pattern of what? Magnetic field lines pattern in a solenoid. बच्चों, सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है बच्चों, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा करके किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। तो वो तो बाद की बात है, हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन cylindrical form, in cylindrical form, students. So first you see the figure carefully. What is this? तो देखो बच्चों, एक्चुअली है क्या, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स and it remains in cylindrical form, as you know. That's why finally I have drawn the diagram of magnetic field patterns रिगार्डिंग सोलेनॉइड। बच्चों देखो, मैंने क्या किया है कि इस सोलेनॉइड में मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाया है बच्चों, बैटरी। आई हैव जॉइंड अ बैटरी। दिस बैटरी कंटेन्स 2 cells. ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। देन आफ्टर, एज वी ऑल नो दैट the direction of conventional current takes place from positive terminal towards negative terminal, as you are looking here. So one thing more I will tell to all of you, try to think over it. As we are looking here, that the direction of current in this coil entering in the coil along the clockwise direction, along the clockwise direction. So if the coil, if the current is entering in the coil in the clockwise direction, then that end will play the role of south pole, and next pole will have what? North pole. This is south pole and this is north pole. As we all know that, students, a solenoid is just equivalent to a rectangular bar magnet. Yes, it plays the role of rectangular bar magnet. आप किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को आप थ्रेड में बांध के कहीं हैंग कर दो, ठीक है, आप देखोगे कि वो नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के तरफ अलाइन हो जाएगा। खैर, इसके बाद आगे देखते हैं। और हम लोगों को पता है बच्चों कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, बताइए। वो होते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको याद होगा, हम लोग जब रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट जो पढ़ रहे थे, या रेक्टेंगुलर मैग्नेट जो पढ़ रहे थे, अगर यहाँ N है यहाँ S है, तो इस तरह से आपका पैटर्न बन रहा था बच्चों, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है बच्चों।
एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यही सेम चीज यहां पर भी है। आउटसाइड द कॉइल, outside the solenoid, the direction of, as you can see, the direction of magnetic field lines taking place from north to south, but inside the solenoid, as you are looking, that the direction of magnetic field lines are from south to north, same as this. Yes, so both are equivalent to each other, we can say. Finally, one thing more I will tell to you, that the strength of magnetic field, बच्चों, I will tell to you all the strength of magnetic field in a current carrying solenoid depends on what are the factors. As I have written that the magnetic field strength at the two end, this is one end, this is end first and this is end second. So at the two ends, its magnetic field strength, the value of magnetic field becomes mu 0 by 2 Ni, where N is the number of turns in the coil and I is the current, amount of current in the coil, means solenoid. तो बच्चों इस फिगर से, इस फॉर्मूला से आप देख सकते हो, from this formula you can identify or you can have an idea that what type of idea can you have. Try to understand. You see firstly the formula, all of you. Yes, I think you have seen the formula. Magnetic field, the value of magnetic field at the ends as well as even in the middle depends on number of turns and the amount of current. So more number of turn, more strong magnetic field, less number of turns, less, what will happen? Less number of turns, less amount of magnetic field if the value of current is constant. Now you see another case. If number of turns are constant, then you can increase or decrease the value of magnetic field in a current carrying solenoid. हमने क्या कहा है यहाँ पर अभी? देखो, एक बार मैंने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट करना है और करंट को आप घटा के या बढ़ा करके आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को घटा या बढ़ा सकते हो। फिर मैंने कहा कि आप करंट को कांस्टेंट कर दो, ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप घटा या बढ़ा करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब होता क्या है, किनारे पर एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड व्हाट हैपेंस, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैंने लिखा है बी एंड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द कॉइल्स, एट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल्स, इट बिकम्स म्यू 0 by 2 Ni। और मिडिल में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर मिड में देखा जाए, अगर मिडिल में देखा जाए इसको ध्यान से, मिडिल में एट द मिड ऑफ द व्हाट current carrying solenoid, we observe that the value of magnetic field strength becomes mu 0 Ni। मतलब ये हुआ कि इस तरफ से mu 0 Ni और फिर उस तरफ से mu 0, इस तरफ से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये वाला वैल्यू और फिर से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यही वाला वैल्यू आ करके ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, मिल जाता है। तुम देख सकते हो कि दिस प्लस दिस अगर आप करोगे, दिस प्लस दिस अगर आप करोगे तो ये मिल जाएगा। आप इसको करके देख सकते हो,
देख लो इतना डिवाइडेड बाय 2, तो ये जब 2 बार जुड़ जाएगा बच्चों, ये जब 2 बार ऐड हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन ए करेंट कैरिंग सोलेनॉइड हाउ डज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड। बच्चों ध्यान से समझिए इन बातों को। और देखो यहाँ पर ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पैरेलल हो गए बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक तो यूनिफॉर्म होगा, इसलिए भी ये पैरेलल हो गया। पैरेलल होना ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है या वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहाँ पर यूनिफॉर्म है। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि ये क्राउडेड भी है, मतलब ज़्यादा नज़दीक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। हेयर इट इज़ क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट magnetic field or value of magnetic field. And you should know one of the applications of solenoid is we can magnetize a magnetic material if we insert that magnetic material in its core. यहाँ जो हमारे पास जो ये होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब के जैसा जो दिख रहा है, इसमें अगर आप एक एल्निको का रॉड रख दो, एक कोबाल्ट का रॉड रख दो, ठीक है बच्चों, इस तरह का अगर हम कोई रॉड रख देते हैं, एक आयरन का रॉड रख दो, आयरन नेल रख दो, तो वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसमें भी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और इस तरह से बनाया गया मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ नेचुरल मैग्नेट से ज़्यादा होता है। ये तो खैर आप लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके होंगे। So by giving these all the informations, try to find out the best result in your forthcoming examination. With these all the wishes, I am leaving to you all here, and shortly I will give you the another part of the same chapter. This is part 4. Find out the conclusions. So keep doing hard labor, and thank you all of you.